We've already started with biotechnology as a topic, and ये जो biotechnology था हमें कितना useful था. So basically what we were studying the applications of biotechnology. Starting from the first point, application, the first important which we have studied was in healthcare. मतलब how we have used biotechnology in keeping our health better. So we have learned about insulin, we have learned about vaccine production, कैसे वैक्सीन बनता है. देन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बेहतर पौधों को बना के हमने एग्रीकल्चर में वी हैव लर्नड द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. Then gene therapy, how we can change the gene. We know what is a gene, a small part of a DNA that has a particular function, specific function. Then we have studied about the GMOs. GMOs were genetically modified organisms. These organisms can be plants also, they can be different animals also, but right now we have already discussed about the first modified plant was tobacco, which we have understood, and we use the word transgenic for this kind of plant. GMO plant को हम लोग बोलते हैं transgenic. So please underline this part. Very important question. Which was the first transgenic plant produced? Transgenic doesn't mean any other thing. Transgenic means genetically modified organism. टोबैको के बाद और भी बहुत सारे पौधों को बनाया गया, जैसे कि राइस, wheat, tomato, soybean, potato, sugar beet, grapes, brinjal, cotton. These were the most commonly produced, but abhi tak they are not been consumed by us. That's what the government says, because there is a probability of allergy or maximum. It was observed once it was consumed, it started showing allergical signs in animals also. So that's why it is not in the market. But the cotton, which is very commonly used nowadays, it's a GMO plant. So what is the benefit of this cotton which we have formed? This cotton is a GM food crop, or we can say for us it's a plant. What do? We use that cotton for making different things, right? So how is it better? Because we have induced in them gene from Bacillus thuringiensis, and the product we have got is BT cotton. And what is the name of the gene which has been induced? It's the cry gene. This is the name of the gene, cry gene. हर एक जीन का अलग अलग नाम होता है. हमारी बॉडी में भी we have different types of gene. This gene has been taken from bacteria Bacillus thuringiensis. And what is the benefit of this gene? ये जीन जैसे ही हाई pH में पहुंचता है, एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, जैसे ही एक इंसेक्ट उस जीन वाले पौधे को खाता है, उसका मिडगट डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड देयर इज रिएक्शन. दैट मीन्स व्हाट ऑल हैपन्स, यू कैन सी फर्स्ट बिगिनिंग विथ मिडगट पैरालिसिस. सो पहले उसका पैरालिसिस शुरू हो जाता है, एंड देयर वुड बी midgut disruptions. So there would be small holes coming in midgut, and slowly the insect will die. तो ये इंसेक्ट ने कौन सा क्रॉप खाने की कोशिश किया था? कॉटन क्रॉप, राइट? दिस इज़ एन एग्जाम्पल, कॉटन क्रॉप. तो ये नॉर्मल कॉटन नहीं है, ये बीटी कॉटन है. इस कॉटन के डीएनए के अंदर हम लोगों ने एक अलग जीन इंसर्ट किया है. वो जीन का नाम था क्राई जीन, राइट? दिस क्राई जीन इज प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन इनसाइड द इंसेक्ट्स बॉडी. when it is going inside the insect, because cotton को खाता है insect,
तो उसके पत्तों के अंदर जो जीन होते हैं वो इंसेक्ट की बॉडी में जाने के बाद वो रिएक्ट करते हैं. ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर GMOs, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट बना वैसे ही बायोफोर्टिफिकेशन हुआ है. व्हाट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन? अब जैसे देखा जाए, लेट्स से वन एग्जाम्पल विच इज़ ऑलरेडी मैंशनड हियर. लेट्स गो थ्रू इट. ओके, transgenic plants, we'll read from here. Transgenic plants have also been produced to provide functional food and nutraceuticals. Functional food means normal हमारे खाने, right? Like अच्छे grapes, अच्छे banana, अच्छे potatoes and mangoes, different vegetables and fruits they will be put under functional food. And nutraceuticals means it's a kind of drug which is used for betterment or for a better health. न्यूट्रास्यूटिकल्स वर्ड फार्मास्यूटिकल की जगह न्यूट्रा इसलिए लिया है. फार्मास्यूटिकल में क्या होता है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ कैल्शियम की दवाई, तो उसमें सिर्फ कैल्शियम ही ज़्यादा होगी, राइट? कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ही ज़्यादा होगा. न्यूट्रास्यूटिकल में क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ और अच्छे प्रपोर्शन में होगा. इक्वलेंट टू फूड ओनली, दैट विल बी इक्वलेंट टू फूड. सो न्यूट्रास्यूटिकल्स भी बनाए जाने लगे. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, क्या ज़रूरत क्या थी, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ऑलरेडी हमारे पास चावल है तो हमने उस चावल को और बेहतर बनाया. ये एक एग्जाम्पल है जिसको हमने वर्ड दिया है बायो फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफाई मीन्स ऐड ऑन करना, टू ऐड ऑन. ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कुछ कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं. Let's talk about some South Asian countries and even some African countries. They are all developing countries. मतलब वो develop कर रहे हैं. तो जब develop कर रहे हैं, it's quite common and understanding part that उनकी economy बहुत poor होगी. So वहाँ जो सबसे commonly used and bought item is rice. चावल is brought by people. तो लोग चावल खाते हैं. तो हमको मालूम है चावल के अंदर क्या है, क्या उसके अंदर प्रोटीन है? नो. कार्बोहाइड्रेट है? यस. तो राइस हैज़ गॉट कार्बोहाइड्रेट. सो ईटिंग कार्बोहाइड्रेट विल गिव अस एनर्जी. लेकिन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है. जैसे कि आइस के लिए, फॉर मेकिंग आइस एज अ स्ट्रक्चर और अ हेल्दी ऑर्गन, यू नीड टू हैव प्रॉपर विटामिन ए. अगर हमारे डाइट में विटामिन ए की कमी होगी, सो दैट कॉजेस इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर आई सेल्स, जिसे बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स. जब ये फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रॉपरली नहीं बनते, देयर इज़ अ टेरिबल ब्लाइंडनेस. और ये देखा गया था जो कंट्रीज़ जो पुअरली डेवलप थे, दे वर नॉट डेवलपिंग. इट्स लाइक दे हैव लेस मनी, सो पीपल आर नॉट नोइंग, दे आर इग्नोरेंट. उनकी पढ़ाई नहीं है तो उनको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं मालूम. सो व्हाट दे डू, दे डोंट हैव मनी. For getting all the nutrients, they have to buy vegetables and milk, right? But they just feed on rice and they think their stomach is full, life is over. With the work, then next day again, they'll have rice, the day gets over. But that's not how it is, right? Then slowly they started understanding जो new developed बच्चे आ रहे थे, they were all having the issues of blindness. They were having eye related problem क्योंकि उनकी आँखों के receptors अच्छी तरह develop नहीं हो रहे थे. For developing the receptors, you know, let's talk about the normal food which they could get. Milk, it has vitamin A. Vegetables, it has vitamin A. Carrots especially, okay, but world cannot afford, but poor people could not afford it. So to solve this problem, जो स्विस रिसर्चर्स हैं उन्होंने ट्रांसजेनिक राइस बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस. व्हाट इज़ दैट? जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस. तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक राइस. तो उस राइस का नाम दिया गया गोल्डन राइस. एंड ऑल्सो दे डेवलप सबसे पहले राइस दिया गया, लेकिन आप लोगों के टेक्स्ट बुक में मस्टर्ड भी दिया है. It was developed later, but still you can remember this as an example. Then genetically developed mustard was also there.
and they've given the word golden rice and golden mustard because they had high vitamin A. Okay, now the golden color is due to the excess vitamin A. They hope that this rice grown and eaten by the people will reduce vitamin A. और ऐसा हुआ, जो लोगों ने विटामिन ए की कमी जिनके अंदर पाई गई, जब वो ये राइस खाने लग गए, जब ये मस्टर्ड का यूज़ होने लगा, सो स्लोली जो डेफिशिएंसी थी वो ख़त्म होता गया. सो इन दिस चार्ट दे हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स: rice, canola, tomato, sugar beet and rice with iron. पहले हमने राइस बात करी, राइस के अंदर विटामिन ए था. उसके बाद राइस ऐसा बना जिसके अंदर आयरन भी हो. ठीक है ना. आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी, फॉर आवर रेड ब्लड सेल. हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन के लिए आयरन इज़ वेरी मच एसेंशियल, राइट. सो वैसे टाइप के राइस को भी बनाया गया. सो दिस इज़ कॉल्ड आयरन फोर्टिफिकेशन. सो आयरन वॉज इंक्लूडेड इन द राइस. So just to avoid, let's go to the next page, page number 284. अब ये कह रहे हैं कि ऑयल की क्वालिटी भी बेटर बनाया गया. तो कौन कौन से ऑयल्स और निकाले गए? सोयाबीन ऑयल, ऑयल पाम, रेपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे ऑयल्स को हम लोग बेटर करने लग गए by using certain gene called Arabidopsis genes. And as I was talking about rice that has iron, कौन सा specific protein was being added to it? You have to learn. Like you know in chemistry, ferrous and ferric is a word. Okay, so iron का जो नाम है, we have used it over here, ferritin. So this is a protein that was included. सो टू अवॉइड, पहले क्या कंडीशन था? विटामिन ए की कमी के लिए गोल्डन राइस बनाया गया. उसके बाद जो नया राइस बना वो उन लोगों के लिए था जिनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी पाई गई थी. सो फेरेटिन वॉज इंड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ जीन इनटू सर्टन राइस वेराइटी एंड यू गॉट स्पेसिफिक राइस वेराइटी. अब ये कहाँ से मिला इनको फेरेटिन? दिस इज़ एन वेरी गुड एग्जाम्पल दे हैव गिवन. सोयाबीन and Phaseola, these are specific plants. उनके अंदर से निकाल के राइस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया. क्योंकि लोगों को नहीं मालूम तो भी वो राइस तो खरीदेंगे ही. सब्जी खानी है, ये खानी है, they don't know, and how to distribute it also they don't know. What they'll do, will buy rice and the problem solved. So government has done it in such a way, such a smart act it was, that now people are not worried. They just brought the rice and then the rice gave them good health. That's how it is saying. Now a third important condition or the benefits in agriculture. हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के अंदर का पहला पॉइंट, ट्रांसजेनिक पौधे बनने लगे. ट्रांसजेनिक पौधों के अंदर इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट पौधे बने. और उसके बाद हमने देखा बायो फोर्टिफिकेशन किया, मतलब पौधों के अंदर का न्यूट्रिएंट्स को बेहतर बनाया. Then modification in post harvest category, or you can say the characteristics. Why we are using this word post harvest? अब जैसे कि टमाटर खेत में उगा, let's say टमाटर was being cultivated, अच्छी क्वांटिटी में टमाटर उगा और राइप हुआ. उन सबको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना था उनको एक बड़े से ट्रक में टू अ फार ऑफ प्लेस, बहुत दूर कहीं ले जाना था. तो लेकिन जब ट्रांसपोर्ट होके वहाँ पहुँचा, सारे टमाटर डल हो गए. इट्स लाइक बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, इट वॉज केप्ट टुगेदर, बट वो क्या हो गए बिल्कुल, दे गॉट स्क्वीज, दे गॉट रॉटन, दे गॉट स्पॉइल्ड. सो दिस इज़ नॉट ओनली इन केस ऑफ टोमेटो बट इन फ्रूट्स ऑल्सो. जब हम किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमें उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें आती है, क्लाइमेट,
then the situation, where exactly we are going, the time taken by the vehicle to reach a particular place. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. सो व्हाट आर द पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशन? सबसे पहले कीड़े लग सकते हैं, राइट? कोई डिजीज़ हो सकता है. देन जो सॉफ्ट फ्रूट होता है वो ख़राब हो सकते हैं. हल्का सा भी लाइक आजकल एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. बनाना को अगर हम लेके आए एंड देन वी क्लीन इट बिकॉज कोरोना पीपल आर सेइंग नो, सो इट्स लाइक वी कैन नॉट कीप एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड डायरेक्टली ऑन आवर डाइनिंग टेबल, राइट? वी हैव टू क्लीन इट. थोड़ा सा भी आप स्क्रबर से जस्ट क्लीन करके एक जो स्क्रब भी मारोगे, यू विल सी आफ्टर 5 minutes इट बिकम ब्लैक ऑन दैट. सो इट्स लाइक अ ब्रूसेस, है ना? जो इतने सारे बनानास जब ट्रांसपोर्ट होंगे, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गेट स्पॉइल. सो ब्रूसिंग मीन्स गेटिंग स्पॉइल. देन स्पॉइलिंग इज़ हैपनिंग ऑन द वेजिटेबल ऑल्सो. कई बारी हीट और कोल्ड की वजह से भी, चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जो हार्वेस्ट, आफ्टर हार्वेस्ट, तोड़ने के बाद, पौधों से निकालने के बाद उसका संभाल के रखना, और जब तक वो कस्टमर के पास नहीं पहुंच जाता, बिल्कुल. अब सब्जी लेने आप जाओगे, ख़राब सब्जियां तो कोई भी नहीं लेगा, राइट? तो एक प्राइम ड्यूटी हो जाती है कि सब्जियां और वेजिटेबल्स जब तक कस्टमर के हाथ में ना पहुंचाए वो फ्रेश हो. तो इसीलिए कुछ चीज़ें करी गई थी. और कौन कौन से कंडीशंस हैं? ओवर राइपनेस, बहुत ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए. लॉस ऑफ फ्लेवर्स एंड ऑर्डर, कई बार पहुँचते पहुँचते वो उसके अंदर का फ्लेवर और ऑर्डर भी चला जाता है. इवन बहुत नुकसान हो जाता है. लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द क्रॉप्स. सो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. पॉलीगैलेक्ट्रोनेस, इट्स अ काइंड ऑफ एंजाइम. ये एंजाइम टोमेटो में पाया जाता है. टोमेटो, वी नो प्लांट सेल का आउटर कवरिंग क्या है? सेल वॉल. एंड सेल वॉल इज़ वेरी हार्ड एंड रिजिड. जो ये सेल वॉल है, ये बना किससे है? पेक्टिन से. सी दिस वर्ड पेक्टिन हियर. यस. सो व्हाट इज सेल वॉल? मेड अप ऑफ पेक्टिन. हियर दिस पॉलीगैलेक्ट्रोनेस जो बनता है बॉडी टोमेटो के अंदर, वो पेक्टिन को ब्रेक कर देता है. जो सेल वॉल होता है टोमेटो के, सेल वॉल को ब्रेक कर देता है आफ्टर राइपनिंग. मतलब जैसे ही वो लाल हो जाता है वो ब्रेक कर देता है. सेल वॉल ब्रेक हो जाता है तो ऑब्वियसली शेप मेंटेन नहीं हो पाता. उससे क्या होता है? फ्रूट कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है. और फिर ईजिली टमाटर ख़राब हो जाते हैं वाइल्ड ट्रांसपोर्टेशन. सो अब साइंटिस्ट ने क्या किया? व्हाट डिड दे डू? They stopped the production of polygalaktronase by an antisense gene. So अब जो टमाटर बना हमारे पास, we call that as flavor saver tomatoes. So they were not having polygalaktronase. polygalaktronase क्या करता था? सेल वॉल के अंदर का पेक्टिन है वो ब्रेक करता था, जिसके वजह से सेल सॉफ्ट हो जाता था और जो हमारा टोमेटो था वो जल्दी ब्रूस हो जाता था, और वी कैन से ईजली यूज टू गेट डैमेज्ड. सो दे हैव मॉडिफाइड बाय इंसर्टिंग एंटीसेंस जीन इन देम. ओके, दे हैव इंसर्टेड एंटीसेंस जीन जो कि पॉलीगैलेक्ट्रोनेस का डेवलपमेंट रोक देता है. तो पॉलीगैलेक्ट्रोनेस नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली जो पेक्टिन है उसको तोड़ेगा नहीं. So even after ripening, tomato hard रहता है. That you must have observed. टोमेटो जो पुराने गाउटी टोमेटो वगैरह बोलते हैं, they are different and what we get in the market is little different. Okay.